देश में हालिया आतंकी घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। कांग्रेस की अगुवाई में 16 विपक्षी दलों ने एक संयुक्त पत्र लिखते हुए ये कहा था कि पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका द्वारा घोषित सीज फायर तक की पूरी जानकारी संसद में दी जाए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विदेशों में सांसदों को ब्रीफ कर रही है, लेकिन देश की संसद को अंधेरे में रखा जा रहा है। वहीं नेताओं का ये कहना है कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां देशवासियों के सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि विशेष सत्र में सुरक्षा बलों के पराक्रम को नमन किया जाना चाहिए और आगे की रणनीति भी साझा करनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस मांग में शामिल होने वाली है, जिससे कुल 17 दलों का समर्थन इस मांग को मिल चुका है। क्या इंडिया ब्लॉक के सभी दल इसमें आ रहे हैं? आने वाले आगे मत जाओ, सर यहाँ तो खबर चल जाएगी दूसरी इस वक्त यहाँ तो खबर दूसरी चल जाएगी चल रही है। अरे भाई हेलो, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है। नमस्कार, जाने दो भाई। All of us were here. On my right, Dipinder Hooda. On his right, of the Indian National Congress. On his right, Manoj Jha of the RJD. Left, the parliamentary leader in Rajya Sabha, Professor Ram Gopal Yadav. Mr. Sanjay Raut, the parliamentary party leader of the Shiv Sena UBT. And Mr. Jairam Ramesh, the chief whip of the Congress in the Rajya Sabha. Today, before we begin, today is an important day in Tamil Nadu. It's the 102nd birth anniversary of the late Mr. Karunanidhi. So no DMK MP obviously would travel on a day like this before you all start some other speculation. Okay? The press conference today will be addressed by 5 of us. I will start. Then we will have Dipinder Hooda of the Congress, then Professor Ram Gopal Yadav, then Mr. Sanjay Raut, and 4 of them I think will speak in Hindi, and Mr. Manoj Jha. Right. So here we go. It's a very short press conference of less than 10-12 minutes. Number 1. 16 parties have written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. The names of those parties are here. These are the leaders of the parties. And the letter basically talks about Punj, Puri, Rajouri, and having a free and frank discussion in Parliament. I'm going to give you the names of these parties. Before we give you the names of the parties, why this letter? The government is responsible to Parliament. Parliament is responsible to the people. So it's but natural for all these parties, since the government is answerable to Parliament, that's why this session, because Parliament is responsible to the people. Who are these parties? The Indian National Congress, the Samajwadi Party, AITC, also known as Trinamool, the DMK, the Shiv Sena UBT, the RJD, the JNK NC, National Conference,
the CPIM, the RUML, the CPI, the RSP, the JMM, the VCK, the Kerala Congress, the MDMK, the CPI-ML Liberation. If you add that up, it's 16, and our understanding is that one more party is writing directly tomorrow to the Prime Minister, and that is the Aam Aadmi Party. Now, so that's the letter. The first signature on that letter is by the leader of the opposition in the Lok Sabha, Mr. Rahul Gandhi. The second signature on the letter is, as per the number of MPs in Lok Sabha, Mr. Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party. Professor is also here. The third signature on that letter is from the All India Trinamool Congress, the National General Secretary, Mr. Abhishek Banerjee. The fourth is Mr. Balu of the DMK. Then we have Arvind Sawant of the UBT, Abhay Kumar Sinha of the RJD, Mia Altaf Ahmed of the JNKNC, Mr. K. Radhakrishnan of the CPIM, Mr. Bashir of the IUML, K. Subramanian of the CPI, Mr. Premachandran of the RSP, Joba Maji and Vijay of the JMM, Vijay Hansak, Dr. Tholkapian of the VCK, and Miss Priyanka Gandhi Vadra. That's the total list of the signatures. So 16 of these have signed. And I conclude by saying that the rest of the MPs will also be signing. Lok Sabha and Rajya Sabha. This is the Lok Sabha and Rajya Sabha in the next couple of days, 2 days, 3 days. But this is done. That process, given the technology available, we will get this done. We are looking at getting it done this week as soon as possible. We want this special session. Over to Dipender Huda. साथी सांसद तृणमूल कांग्रेस से डेरेक भाई ने कहा कि 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें और दूसरी ओर बिंदुवार पूरी घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसदीय लोकतंत्र से जुड़ी हुई। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए आज ये चिट्ठी हमारे दलों के नेताओं के माध्यम से लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है और साथ ही सभी
सांसदों के तरफ से भी ये मांग दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए सभी सांसद भी लिख रहे हैं चिट्ठी साथ में, उस पर भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने बात की है और मैं कोई नई बात नहीं कहने जाऊंगा। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, जिसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है, ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुए तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो इस हिसाब से हम सभी ने, प्रमुख विपक्षी दलों ने लेटर लिखा है और हम हमारी आवाज और हमारी बात कहते रहेंगे। मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है, प्रधानमंत्री जब संकट में थे या देश संकट में था तो आपको हम सभी की जरूरत पड़ी थी कि देश एक है, हम सब एक है, तो हमने आपको समर्थन दिया। There is nothing more to elaborate further. Pahalgam was not individual pains of the families who lost the near and dear ones. ये पूरे देश की सामूहिक पीड़ा थी। पूरा देश हम की भावना से सोच रहा था, वी, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। हम की भावना से सोचने के बावजूद कुछ चिंता के लक्षण हुए। एक दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में, और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन, वी आर हर्ट। हु विल गिव अ मैसेज? Parliament. Honorable Prime Minister, if Parliament is convened, summoned for this, we'll speak in one language. When our CDS says, I'm not concerned about how many, why? This why? ये पीड़ा है पूरे देश की। ये कहाँ चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा। संसद है, हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है, और जब देश आहत होता है तो
कि सबने अपने नेताओं के माध्यम से, सदन में जो इन सबके नेता हैं उनके माध्यम से लिखा है और जो एक मान हम कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी उसमें दोहराना का कार्य किया गया है। सभी ने संयुक्त रूप से एक संसद का सत्र बुलाया है। जो सारा घटनाक्रम हुआ वो देश के सामने है। जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, हमने सबसे पहले बढ़कर सरकार का साथ देने का निर्णय दिया था, सभी पार्टियां एक साथ आई। मगर अब क्योंकि अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा की गई और उसके बाद का जो घटनाक्रम है, यहाँ सरकार के प्रतिनिधि देश के अलग अलग राजधानियों में जाकर वहाँ की संसदों को ब्रीफ कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की संसद को भी क्या घटनाक्रम हुआ उस बारे में सरकार बिंदुवार बताए। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर और उसके बाद कूटनीतिक रूप से क्या हम पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने में सफल हो पाए, नहीं हो पाए तो आगे क्या रणनीति बने, क्या आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का में जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई के साथ साथ आगे क्या कदम उठाए जाएं। हम स्पेशल सेशन के माध्यम से एक और अपनी फौज का धन्यवाद करें, उनके पराक्रम को नमन करें और दूसरी ओर जो कई ऐसी बातें हैं जो आगे किस रूप से हमारी कूटनीति, किस रूप से विदेश नीति, किस रूप से क्या सरकार की नीतियों के माध्यम से हम आगे कदम बढ़ाएं, उन पर चर्चा हो और एक स्वर में देश बोले। जो सवाल देशवासियों के मन में हैं उन सवालों का भी उत्तर सरकार भी दे और जवाबदेही तय हो। ये हमारा लोकतंत्र है। जब आप